Affiliated with well-known corporate houses and educational institutions in Mumbai. She consults online and from her clinic space in Dadar, Andheri, Mumbai. So over to you, Natasha. Carry on. Thank you, Shifa, for that introduction, and thank you, Thane School of Yoga, for hosting such a wonderful event. And I think this is a great platform. Am I audible to everybody? You can show a thumbs up. Okay, great. Okay, so yes, like Shifa said, I'm a psychologist. So my favorite subject is talking about mental health, and also I'm a yoga teacher. So my other favorite subject is talking about yoga, and my most favorite thing is to club the two and marry the psychology, modern psychology part, and the West Eastern psychology part, that is of yoga and all the sciences given by our country and the great saints. All right, so moving forward, let me try to change the slide. Okay, so सबसे पहले let us understand कि health क्या है. तो जब हम हेल्थ बोलते हैं तो जनरली बोलते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, बीमार तो नहीं लग रहा. तो दैट डज नॉट मीन कि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. हेल्थ का मतलब ये है कि आप हर लेवल पे यू आर डूइंग well, there is a sense of well-being at the level of the physical state, of course, at the level of the mental state, and at the level of the social and emotional state. So that in all by WHO is health or well-being. Now mental well-being is a very key role player in terms of health given by WHO. Mental health disturbances or disorders are directly related to well-being, and thus it is very important for us to discuss this. Even the YCB yoga board certification, they talk a lot about modern psychology, and thus today we are going to be discussing that further and drawing a marriage between the yoga and modern psychology and how yoga can be helpful to people. All right. सो व्हाट आर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जनरली एज योगा प्रैक्टिशनर्स और एज एनी बडी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन मी many times we'll make this general statements that okay, अरे this person is sad, अरे तो बहुत डिप्रेस्ड इंसान है. या फिर कोई इंसान जो बार बार जिनको साफ सफाई रखने की बहुत आदत है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि अरे इसको तो साफ सफाई रखने की, इसको कितना ओसीडी है, हर चीज़ को लेकर ओसीडी है. ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल हेल्थ इलनेस है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ इलनेस है, जहाँ पर लोगों को कंट्रोल नहीं होता इन द वे दैट दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स और इन द वे दैट दे आर feeling and in the way that the behaviors are coming out. Why are they not able to control themselves? Because mental health disorders either are resulted from or result into chemical imbalances. Our whole body, our nervous system, neurological, neuroendocrinal system is made up of so many hormones, so many chemicals, और कहीं ना कहीं पे एक केमिकल भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो वो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स में बहुत ह्यूज इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है. ये हम सबको पता है, और कैसे पता है ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. So a lot of loss is caused when somebody is suffering from a mental health disorder. आप कैसे पता करेंगे कि इसको mental health disorder है या फिर ये थोड़ा सा यूनिक है? हम लोग बोलते हैं ना, जनरल टर्म्स में भी हम बोलते हैं अरे ये तो थोड़ा हटके इंसान है. अभी हटके इंसान का मतलब ये नहीं है कि उनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है. या जब हम खुद की तरफ भी देखते हैं, जैसे हमको अगर बार बार सफाई करने की आदत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको ओसीडी है. ओसीडी कब है? जब हम नॉर्मल लाइफ में फंक्शन नहीं कर पाए या उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी है विद पीपल अराउंड अस, आवर सोशल लाइफ, विद आवर वर्क लाइफ, विद आवर family life, with our own self, the relationship that we share with our own self, if we are not able to be functional, then that is a mental health disorder. And apart from that, if we are able to be functional, we are doing well, then that is not a mental health disorder, that is just a unique trait or a passing phase. So as yoga professionals, it's very important to understand this fact. That's why I brought it forward today, और आगे भी हम इस बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. So mental health disorders, like I said earlier, they cause imbalance moods, low self esteem. जो चीज़ें आपको पहले enjoyable लगती थी वो अब इतना enjoyable नहीं लगती हैं. So क्यों नहीं लगती है? Let's see that further. अभी नॉर्मल लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई या आपके घर में कोई लॉस हो गया. So कोई ना कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रीफ, सैडनेस, या आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया, वेरी सिंपल थिंग्स, और वेरी सिंपल थिंग लाइक योर नेबर फॉट विद यू, या फिर आपकी गाड़ी पे किसी ने खरोच कर दी. दीज आर वेरी नॉर्मल, वेरी एवरीडे थिंग्स, एंड दिस इज नेचुरल टू फील सैडनेस अबाउट इट. इट इज़ नेचुरल टू रिएक्ट इन अ सर्टन वे ऑफ एंगर अबाउट इट. लेकिन अगर ये चीज़
कई समय तक चलती रहे, कई समय तक मतलब इन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दे हैव गिवन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 वीक्स। अगर 2 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज़ डेसिपेट हो जाती है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 2 वीक्स के अंदर ये डेसिपेट नहीं होती तो then we need to check it with a mental health professional. Profound disturbance that lasts for more than 2 weeks. I've highlighted that also. It may be a sign that you need to seek help from mental health professional. Now I have put a tool over here which can be useful for everybody. It's an informal tool which is called as PHQ-9. I will share the screen so you will be able to see the PHQ-9 also. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको PHQ-9 आसानी से दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसे दिखता है। सो PHQ-9 क्या है? इट इज़ अ इनफॉर्मल स्क्रीनिंग टूल जिससे हमको समझ में आएगा कि अगर 2 हफ्ते के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनीथिंग दैट इज लास्टेड इन द लास्ट टू वीक्स, हाउ ऑफन हैज दीज थिंग्स बॉदर्ड यू. सो थ्रू दीज स्टेटमेंट्स you will be able to understand and also check that for the people who are coming to you, because as a yoga professional a lot of times people come for therapy. सो दिस इज़ एन एक्सीलेंट टूल. ये टूल आपको ये भी बताएगा कि मिनिमल है, माइल्ड है, मेजर है. एटलीस्ट अगर ये कुछ नहीं बताएगा तो आपको ये ज़रूर बताएगा कि कहाँ पर ये वाली चीज़ें हेड कर रही है या कौन से स्टेटमेंट्स के साथ वो पेशेंट को प्रॉब्लम है. सो दोज आर द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ द पेशेंट. सो आई होप दैट्स वेरी क्लियर फॉर एवरीबडी. आई एम चेंजिंग द स्लाइड अगेन. वेयर वर वी? ओके, ऑल राइट. So now let's do one thing. Let's do a small activity. I hope you all have a paper with you. I'm going to stop sharing the screen again. I hope you all have a paper with you. Let's make it a very practical session, something that we can experience. So एक पेपर निकाल लीजिए जल्दी, कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी पेपर, because हमारे पास समय बहुत कम है and that is why I'm running a little fast. But this will be interesting in terms of empathizing and why I'm doing this exercise is about psychiatric disorders. Let's understand कि क्या connection है. So जल्दी से एक पेपर निकाल लीजिए. I hope you all have the paper. If you have a paper with you, I request you to switch on the screens. Please put your videos on. It will be very interesting if your videos are on, because everybody will be able to see the activities that we are doing together. So पेपर को आप फोल्ड कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और पेपर को फोल्ड कर लीजिए. अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और पेपर को फोल्ड कर दीजिए. अब ये फोल्डेड पेपर को आपको महसूस करना है अपने हाथ में. कैसा है वो पेपर? स्मूथ है, रफ है, थिक है, थिन है, जो भी है, आपको पेपर को फील करना है. उसको रोटेट करिए अपने हाथों में. आप सब योगी हैं तो हम सब अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. सो इसको अवेयरफुली जस्ट गो थ्रू द पेपर, माइंडफुली जस्ट टच द पेपर. वेरी नाइस, विद अ ब्यूटिफुल स्माइल. स्माइल रखेंगे तो अपने को मज़ा आएगा ना. तो अब अपनी आंखें बंद रखते हुए टेयर अ कॉर्नर, टेयर अ कॉर्नर, एक कोना फाड़िए. अब आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा. प्रत्याहार करना है. योग का सबसे प्यारा चीज़ जो मुझे लगता है वो है प्रत्याहार. उसके बाद एक और बार फोल्ड कीजिए पेपर और टेयर अ कॉर्नर. फिर से एक कोना फाड़िए, फिर से पेपर को फोल्ड करेंगे और एक कोना फाड़ेंगे, फिर से पेपर को फोल्ड करेंगे और एक कोना फाड़ेंगे. अब पेपर थोड़ा थिक हो गया है, मुश्किल भी हो रहा है कोना फाड़ना, पर कोई बात नहीं, मुश्किलों के आगे जीत है. तो हम वापस से पेपर को फोल्ड करेंगे और मुश्किलें बढ़ाएंगे अपने लिए और एक कोना फाड़ेंगे. बहुत बढ़िया. अरे वाह, आप लोगों के मुंह पे स्माइल तो इतनी अच्छी लग रही है. तो जो लोग नहीं कर रहे वो भी स्माइल करेंगे. चलिए. ओके, वंडरफुल. अब मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्लाइड ज़्यादा है और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, ऑल राइट. नाउ अब स्लोली पेपर को हम शणे स्लोली ओपन करेंगे. अब पेपर को हमने ओपन किया, अब उसके साथ अपनी आंखें भी ओपन करेंगे और अपना अपना डिज़ाइन ज़रा स्क्रीन पे दिखाएंगे. और देखिए किसके साथ आपका डिज़ाइन मैचिंग है क्या. वाह, बटरफ्लाई और क्या क्या बना है, फ्रॉग और पता नहीं दूरबीन बना है, किसी किसी की 2 आंखें बनी हैं, एक स्माइल बना है. किसी के साथ मैचिंग है आपका पेपर? देखिए ज़रा जल्दी से. मैचिंग दिखता है? यह शैलजा जी पेपर दिखाइए. अरे वाह, सच अ ब्यूटिफुल स्माइल, आई मीन सच अ ब्यूटिफुल पेपर. ओके, सो दीज आर डिफरेंट डिज़ाइंस. मैंने इंस्ट्रक्शन सबको अलग अलग दिए थे क्या? नहीं, पक्का सेम इंस्ट्रक्शन है. तो फिर पेपर में कैसे डिफरेंस है?
because our mind are working differently. Okay, because our minds are working differently. Very nice. और बीना जी, आपका पेपर बताइए. अरे वाह, what a nice design. Yes, Anuradha ji, you said something. अच्छा, कुछ तो बोला अनुराधा जी ने, मुझे समझ नहीं आया, बट आई थिंक ऑन द सेम लाइन्स. दैट्स समथिंग वी आर वर्किंग डिफरेंटली. Interpretation. Interpretation. Correct. So yes, so thank you Swati ji, Anuradha ji, Pratibha ji. So yes, it is our interpretation of the way things are coming in our life. This is our perception. अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूँगी. इतना फास्ट तो मैं ज़िंदगी में नहीं गई. ठीक है, चलेगा. एक मिनट. हम कहाँ पर थे? हाँ, हम इस एक्टिविटी पे थे. अभी आप समझिए कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशंस दैट आर डिफरेंट इन आवर लाइफ. सो इतना सेम इंस्ट्रक्शन होने के बावजूद, इतना छोटा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत ही अलग हमने देखी हमारे पेपर में. वैसे ही लाइफ बहुत बार हमारे सामने सेम चैलेंजेस लाती है. सबको स्कूल जाना है, सबको कुछ ना कुछ करना है, सबको 10th पास करना है, सबको जॉब लेना है, शादी करना है, बच्चे करने हैं. मतलब मोस्टली ऊपर नीचे सिमिलर सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं. लेकिन फिर भी हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं. क्यों अलग है? क्योंकि हमारा मेक अंदर से अलग है. ऋषि पतंजलि टॉक्स अबाउट क्लेशास. ही टॉक्स अबाउट कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम जिस सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं वो थोड़ा अलग सॉफ्टवेयर है. वो ही नहीं, जब हम लाइफ में आते हैं तब भी जैसे चीज़ें सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, वैसे वैसे हमारी जर्नी बनती जाती है. बट एंड ऑफ इट आप सबका पेपर ब्यूटीफुल है. दैट मीन्स एंड रिजल्ट इज ऑलवेज गुड. सो योगा एंड साइकेट्रिक कंडीशंस. अब इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एन एम्पैथी टुवर्ड्स एवरीबडी. देखिए, सेम सिचुएशंस होने के बावजूद भी कई बार द वे दैट आवर बॉडी परसीव्स इट और द माइंड परसीव्स इट कैन रिजल्ट इन सम टाइप और द अदर रिस्पॉन्स इन द सिस्टम. तो कभी कभी. हाँ जी सर. पीपीटी बड़ा कर. अच्छा, वो नहीं दिख रहा है. ओके, सर बड़ा ही है मेरे यहाँ पे तो. नहीं बड़ा कर. और अभी है, अभी ठीक है. ओके, नाउ इट्स ओके सर. ऑल राइट. सो कहीं ना कहीं पे ये वाले कंडीशंस हमारे लाइफ में आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई वीक है या कोई स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से हमें नहीं देखना है. एनी डिसऑर्डर इज़ अ डिसऑर्डर. जैसे हमने डायबिटीज़ को एक्सेप्ट किया है, जैसे हमने हार्ट इश्यूज़ को एक्सेप्ट किया है, और हम जैसे उस पर वर्क करते हैं वैसे ही हमें दूसरे डिसऑर्डर्स को भी देखना है जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स है. अगर इतने छोटे समय में ये एक्टिविटी करके हमारे रिजल्ट्स इतने अलग हो सकते हैं, तो लाइफ हमारी कितनी बड़ी है और कितने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हो सकते हैं. सो एज योगा प्रैक्टिशनर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एम्पैथी इन योर एटीट्यूड, दैट अंडरस्टैंडिंग इन योर एटीट्यूड. सो बेसिकली अब योगा प्रैक्टिसेस कोई नया कंसेप्ट नहीं है in terms of psychiatric issues or in terms of psychiatric illnesses or in terms of mental health disturbances. It is known to prove that they have been very, very useful in terms of intervention when it comes to depression, anxiety, insomnia, ADHD. ADHD is attention deficit hyperactivity disorder, schizophrenia, addictions, जो अलग अलग टाइप के एडिक्शन है. और योग में बहुत बार इन चीज़ों पे बात किया गया है. ADHD में रेस्टलेसनेस जो है, ये भी आप अगर देखेंगे तो योग में इसके बारे में भी बात किया गया एज अ पार्ट ऑफ द सहभुवा. देन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो एज के साथ हमारा अगर न्यूरल फंक्शनिंग में वेयर एंड टेयर आता है, तो कहीं ना कहीं कॉग्निशन मतलब आपका जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वहाँ पे अगर इम्पेयरमेंट है तो योग प्रिवेंटिव साइंस भी है और योग एक रेमेडियल साइंस भी प्रूव हुआ है ऑलरेडी. सो योगा प्रैक्टिस हैज़, बट ओनली थिंग इज इट वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टू साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स. अभी हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक स्टैंड अलोन हो सकता है, और कहाँ पे उसको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट की तरह ही हमें यूज़ करना चाहिए. So when it comes to a psychiatric condition, it is a complementary treatment along with the medications or also working with the help of a mental health professional. So ये सारी चीज़ें हमने already योगा के through देखी है. This paper has come from NIMHANS and that's why I wanted to put it in front. That cognitive performance in people with depression has improved with yoga. Better recognition of emotions, abilities in people with schizophrenia. अभी schizophrenia क्या है? Schizophrenia is a mental health disorder जहाँ पे आपको कुछ positive symptoms दिखते हैं in sense of hallucinations.
हेल्यूसिनेशंस क्या है? जो चीज़ नहीं है वो आपको दिखती है, जो चीज़ नहीं है वो आपको सुनाई दे सकती है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं माइंड में जो आपको रियलिटी से टच में नहीं रखते, आप अपनी ही दुनिया में ऑपरेट करते हैं. सो वहाँ पर भी योग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. सो ऑफ कोर्स इट हैज़ हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग ऑफ मेमोरी, स्लीप, क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये सारी चीज़ें वी ऑलरेडी know of also, right? So now let's understand from the modern view how these disturbances happen. Now let me just stop sharing and I will make you hear something, okay? What am I going to make you hear is also something nice. I hope you enjoy it. Just a minute. Okay, अगर आप लोग आंखें बंद करेंगे तो और मज़ा आएगा. So please close your eyes. लेट्स मेक इट अ वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन. जब हम अपने ऊपर कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो हम आके और उसको अच्छे से पहुंचा पाते हैं. ओके, 1 minute, होल्ड ऑन, आई हैव नॉट शेयर्ड द साउंड. ओके, लेट योर आईज बी क्लोज्ड एंड सिंपली लिसन टू द साउंड्स एंड ऑब्जर्व आपके अंदर क्या हो रहा है. सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ सुनना है. ओके, सो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन ओपन योर माइक एंड से कि आपको क्या फील हुआ. I could hear some eerie sound. Eerie sounds, okay. Eerie sound. Okay, fear, suspense, समुद्र thriller. की लहरें की आवाज आ रही है ऐसा लग रहा था. Okay, आपके अंदर क्या हो रहा था? अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं और ठीक है. वेव्स आ रहे, ऐसा All थोड़ा सा right. फील हो रहा था. फीलिंग्स क्या थे बाकी सबसे? हाँ जी. Fear followed by energy. Okay, there was fearful energies inside. Okay, curiosity कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. और Alertness. I was curious about that only because I was late by 7 minutes, तो मेरे अंदर वही फीलिंग चल रही थी कभी पास पास नशाशरी कर रहे तो 7 मिनट्स में मैंने क्या मिस किया है करके. okay, heartbeat increased, vibrations. Yeah, that's yeah. ओके, ऑल राइट. सो हम सबको अलग अलग चीज़ फील हुई ये सेम म्यूज़िक ट्रैक सुन के. दैट मीन्स एक तो पहले तो हमारा मेक अलग है, ये वापस प्रूव हो जाता है. और दूसरी चीज़ है कि ये म्यूज़िक ट्रैक ऐसा था, कहीं ना कहीं इसने थोड़ा सा हमारे अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, जिससे आप अगर ध्यान से सुना होगा तो अंदर एक वाइब्रेशनल शिफ्ट होने लगा. अब मैं एक और ट्रैक प्ले करूँगी और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे. राइट, सो मैम इज सेइंग कि ऐसा लगा कि कोई हॉन्टेड अपार्टमेंट में या हॉरर मूवी में हम लोग चल रहे थे. तो आंखें बंद थी और फिर आपको इस तरीके के विजुअल्स आने लगे, ऐसे ऐसे लगने लगा, ऐसे होने लगा. और ये सिर्फ मैंने आधे मिनट के लिए प्ले किया, सिर्फ आधे मिनट के लिए. सो इसने बॉडी पे कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट छोड़ा. अब हम दूसरा एक सुनेंगे और देखते हैं उसमें हमको क्या महसूस होता है. सो आंखें फिर से बंद करेंगे प्लीज़. आप बोलेंगे बार बार ये आंखें बंद करके क्या हो रहा होता है, बट आंखें बंद कीजिए एक बार और अभी मैं शेयर कर रही हूँ. ओके,
अब क्या हुआ था? आंखें खोल दीजिए। वाह, क्या मुस्कुराहट, 440 वोल्ट का बल्ब। ओके, डांसिंग करने का मन हुआ, हैप्पीनेस। I danced also. In between, I was dancing along with my smiling and everything. Like it was, She is a I was into celebrity. it now. She is a celebrity. Na? She is also always dancing. Like so happy, you felt like dancing. सर तो हंसने लगे, मैंने देखा। मेरे भी अंदर से हंसी आ गई। बार बार मैंने कितनी बार ये ट्रैक सुना है तो भी मेरा मूड चेंज हो जाता है। देखिए, ये वाले सिचुएशन से ये प्रूव होता है कि हमारे अंदर कितनी जल्दी चेंजेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द केमिकल। सो जैसे ही आपने दूसरा ट्रैक सुना, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो गए। जैसे ही आपने पहला ट्रैक सुना, कहीं ना कहीं पे एक अंदर हॉन्टेड, डर, हार्ट बीट फास्ट, तो वहाँ पे क्या रिलीज होना शुरू हुआ वो हम देखते हैं अभी। सो दैट मीन्स if we are able to okay, there is an effect of things on us, there is an effect of emotions on us, right? तो क्या होता है, जैसे ही हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है जिसको हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन बोलते हैं या चैलेंजिंग सिचुएशन बोलते हैं, जिसको हम सिचुएशन बोलते हैं बेसिकली, इसको इस तरीके से ले लीजिए, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करती है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल या चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। एज अ योगा स्टूडेंट वी ऑल नो विच साइड इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द राइट साइड ऑफ द बॉडी, जिसको हम सन नर्व भी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। सो वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? एक्शन, कोई ना कोई चीज़ को डील करने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करना। सूर्य का काम ही वो है कि आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करना। सो कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, उसको फेस करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो उससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, ताकि आप कुछ मोड में आ पाओ, कुछ एक्शन कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके अपने देश पे कोई हमला होता है तो क्या होता है, या फिर आप सिंपल एक ले लीजिए, जैसे आपको कोई अटैक करने आया तो आप क्या करोगे? आप भी अपना हाथ आगे कर लोगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट। सो वैसे ही देश पे अगर हमला होता है तो सारे एनर्जीज या जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? बॉर्डर पे। वो बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम सबके अंदर है। तो जैसे ही वो बॉर्डर पे जाते हैं तो वो बॉर्डर पे यूटिलाइज होने लगते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो मुझे पता है कि मुझे हमेशा अलर्ट रहना है, अंदर से ही मेरा सारे सिस्टम्स मुझे इस चीज़ में रखने के लिए रेडी है, क्योंकि मुझे अभी ये वर्क करना है, ये प्रेजेंटेशन करनी है, राइट? सो क्या होता है, अभी आप कोई इमोशंस फील करोगे, अलग अलग इमोशंस के अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन योर सिस्टम। सो एंगर का अलग इफेक्ट है, डिप्रेशन का अलग, सैडनेस का अलग इफेक्ट है, एंग्जाइटी का अलग इफेक्ट है। अभी लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। जब आपके सामने कोई खतरा है, जैसे देश के ऊपर खतरा है, तो सब सिस्टम्स बॉर्डर पे जाते हैं। अंदर का राशन भी आप बॉर्डर पे भेजते हो, जितने भी सिपाही बीच के भी कंटोनमेंट्स में जो भी लोग थे, वो सब आर्मी पूरा बॉर्डर पे जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बॉडी तैयार है प्रोटेक्शन करने के लिए, या देश आपका तैयार है प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर ये जंग चलती रहे थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज उतने हैं, तो वो क्या होता है, जब देश तैयार हो रहा है तो अंदर के रिसोर्सेज बाहर जाते हैं। अब बॉडी के अंदर कौन से रिसोर्सेज है? अगर आपको किसी चीज़ को डील करना है तो बॉडी क्या करेगी? शुगर रिलीज करेगी। बॉडी क्या करेगी? ग्लूकोज रिलीज करेगी। ग्लूकोज रिलीज करने से आपको बाहर पावर मिलती है और आप उसको डील करते हैं। लेकिन अगर ये होता रहे कॉन्स्टेंटली, तो ये जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स है जिसको हम बोलते हैं, और वो बीच के सारे रिसोर्सेज डिप्लीट कर दे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के फंक्शंस चलने बंद हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, या फिर वो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं पे कम होने चले जाएंगे। और जैसे रिसोर्सेज कम होते हैं, कोई ना कोई इलनेस अंदर आने लगता है। एक सबसे बड़ा हार्मोन जो रिलीज होता है वो टाइम पे, जिसको हम कोर्टिसोल बोलते हैं। सो इफेक्ट कैसा है कि कोई भी चीज़ आपके सामने आती है जिसको आप चैलेंजिंग समझते हैं, वो चैलेंजिंग चीज़ जब आपके सामने आती है, आप उस चीज़ को इमिडिएटली, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को, मतलब ये जो आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है, ये आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि अरे सुन अभी अपने को जागने का है, कुछ फेस करने का है। फिर वो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे आपके एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कोर्टिसोल बोलते हैं। कोर्टिसोल का मेन फंक्शन एक्चुअली डिजाइन है हमारे को हेल्प करने के लिए। अगर आप ये 4th पॉइंट देखेंगे, द रिस्पॉन्स वॉज डिजाइन टू प्रोटेक्ट योर बॉडी in an emergency by preparing to react quickly. But when the stress response keeps firing day after day, it could put your health at serious risk.
सो डायबिटीज़ भी ऐसे ही होता है, अगर हम लोग कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं लें, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं करना सीखें, तो इट कैन क्रिएट और गेट इनटू सीरियस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. एंड अकॉर्डिंग टू योगा, stress or other kind of elevated disorders that come from let me just go to this. जो लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे, या तो चीज़ें इनिशियली यूज स्ट्रेस में होती हैं, मतलब अच्छे स्ट्रेस में होती है जहाँ पे आप कुछ फेस करने को जाते हैं आगे, या अगर वो अच्छे स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए, अपने कैपेसिटी से बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए, या कंटिन्यूसली होते ही रहे, हम रेस्ट नहीं करें, तो वो डिस्ट्रेस में बदल जाती है और फिर कोई ना कोई इलनेस का रूप ले लेती है. So this is a general adaptation syndrome. This you can look it up on Google also. And this syndrome explains everything from alarm stage to exhaustion stage. So alarm stage is where your central nervous system, when your sympathetic nervous system gets activated. But अगर एक point पे वो work होता है, वो resistance level पे अगर वो handle कर लेते हैं तो अच्छी बात है. अगर नहीं होते या करते ही जाते हैं अपनी ज़िद में कि नहीं हम बहुत strong हैं, हम तो कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो distress में चेंज हो जाता है और वहाँ पे एग्जॉशन हो जाता है, राइट. सो बहुत बार आप ये भी सुनते हैं कि यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो गया, या देर आर सो मेनी सच एग्जाम्पल्स वेयर ड्यू टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ऑल्सो पीपल हैव गिवन अप देयर लाइफ, जबकि सब कुछ है उनकी लाइफ में, फेम है, सेलिब्रिटीज़ हैं, पावर है, मनी है, लेकिन तो भी उनको कुछ बचा नहीं पाया. अभी लास्ट ईयर ही या अभी रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी हुई सुशांत सिंह, जो एक एक्टर थे उनकी, और सब कुछ होने के बावजूद भी बचा नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनको वो युक्त मतलब अवेयरनेस नहीं रहा कि कहाँ पे खुद को स्टॉप करना है, या फिर कहाँ पे दोनों सिस्टम्स को बैलेंस करना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो नर्वस सिस्टम है, दूसरा हाफ पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट है. सो एक नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस होने से दूसरे नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा. सो इट इज़ सो योगा रियली ट्राइज टू बैलेंस द टू. अभी योगिक व्यू से क्या होता है ये हम समझते, तो बहुत सारे व्यूज़ है योगा में भी, बट मैं यहाँ पे एक व्यू जो भगवत गीता का व्यू है वो प्रेजेंट करती हूँ. सो भगवत गीता में बहुत सीधा सीधा लिखा गया है कि जब जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट की तरफ अटैचमेंट बढ़ेगा या डिज़ायर बढ़ेगा, और ये होने ही वाला है बिकॉज हमारा सॉफ्टवेयर कहीं पे ऐसा है कि हम यहाँ देखते हैं तो हमको ये पसंद आता है, वहाँ देखते हैं तो वो पसंद आता है. अब जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर डिज़ायर आएगा, आप वो ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाएंगे तो फिर और डिज़ायर होगा कि ये ऑब्जेक्ट मुझे मिले, दिल मांगे मोर, फिर हम जाएंगे, अच्छा ये डिज़ायर पूरा हुआ, अभी दूसरा डिज़ायर पूरा हुआ, तीसरा डिज़ायर. तो इतने लोग हैं, सब डिज़ायर पूरे हो रहे हैं लेकिन खुश नहीं है. दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होती तो आपको होता है फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा कि क्यों पूरा नहीं हुआ. जब गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आता है तो कहीं ना कहीं पे वो डिल्यूजन लेकर आता है. दैट मीन्स आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं होती, आपको ऐसे होता है कि अभी मतलब यही एक लाइफ का मिशन है, आप वो छोड़ नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पाते, और फिर वो आगे जाके आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है. दैट इज़ द योगिक व्यू. समवेयर your intelligence gets affected because of this pressure that you put on yourself due to excessive attachment to gaining something. You are not able to let go. और ये सब कहाँ से आता है? महर्षि पतंजलि often quotes it as the महाक्लेशा, that is अविद्या, जो हमें पता ही नहीं कि जो चीज़ जो टेम्पररी है उसको हम परमानेंट समझते हैं, और फिर उससे एक अटैचमेंट हमें होना शुरू हो जाता है. सेम चीज़ें ये वाली आप देखेंगे तो कोई एडिक्शन के पेशेंट्स हैं उनके साथ भी होती है, और आगे आगे यही साइकिल चलता है. अभी ये सब कब लिखा गया था योग में? कितने हज़ारों साल पहले, लेकिन आज भी ये वैलिड है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हाई बीपी, डायबिटीज़ या PCOD, they all come under psychosomatic diseases as it starts from मनोमय कोश. दैट मीन्स योग में एक सिंस यू ऑल आर मोस्ट ऑफ यू ऑल आर योगा स्टूडेंट्स, तो आपको ये या टीचर्स, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड में स्टार्ट होता है. माइंड में जब कोई चीज़ें तकलीफ देती है तो कहीं ना कहीं वो प्राण में आती है. जब आपने वो म्यूज़िक सुना तो क्या बोला कि हार्ट बीट बढ़ गई, या कुछ रेस्टलेसनेस लगने लगी, या फिर कोई हॉन्टेड मूवी चल रही थी, तो उसका मतलब क्या है? वो आपकी ब्रीदिंग में उसने एक डिफरेंस लाना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज वो थॉट्स आपके माइंड में वैसे आने शुरू हो गए. ब्रीदिंग में डिफरेंस होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी में भी एक रेस्टलेसनेस लाएगा, आपको लगेगा कि आप मूव करो, या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज हो जाएगी. अब यही चीज़ जब हमने एक हैप्पी म्यूजिक सुना तो आपके माइंड से वही पर्कुलेट होकर ब्रीदिंग में भी गया, तो आपकी ब्रीदिंग में क्या हुआ? लाफ्टर हो गया, आप हंसने लगे, या फिर आप रिलैक्स्ड फील करने लगे, और फिर आपकी बॉडी भी ओपन हो गई. सो दिस इज़ अ कनेक्शन between the mind
between the breath and the body according to yoga. Okay, so far so good. So far so good. So far so good. Okay, perfect. So now I'm going to share it again. We will move forward. अभी ये चीज़ समझनी है कि योगा से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में क्या बेनिफिट होने वाला है हमको हमारी बॉडी में, क्योंकि हम मोस्टली यहाँ पे बॉडी लेवल की बात, बॉडी एंड माइंड लेवल की बात कर रहे हैं. सो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कॉजेज अ रिडक्शन इन स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल. जैसे हमने कोर्टिसोल के बारे में पहले बात किया, अभी देखिए कोर्टिसोल जनरली अपने आप वापस चला जाना चाहिए, एज इन होम्योस्टेसिस में चला जाना चाहिए. जब सिचुएशन पास हो गया तो चले जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाम देती हूँ तो 1 महीने से मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, या फिर जो लोग सेल्स में, उनको ये पता होगा कि टारगेट मीट करने का टाइम है तो बैक टू बैक कर रहे. सो वो कोर्टिसोल से उनको एनर्जी मिल रही है और वो कर रहे, लेकिन उनको नींद की भी प्रॉब्लम है, सो नहीं पाते, या फिर ये होने के बाद एक बहुत मेजर चीज़ हो गई हमारी लाइफ में, जैसे कोई हॉस्पिटल में है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, या बहुत सारे मेजर सिचुएशंस हो गई, लेकिन कोर्टिसोल अगर बैक टू नॉर्मल नहीं गया तो ये आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि कोर्टिसोल के लिए अब कुछ डील करने के लिए बाकी नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर रिलीज हो जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस कर रहा है, फिर भी वो ब्लड शुगर रिलीज कर रहा है, फिर भी वो अलर्टनेस आपके अंदर ला रहा है, तो वो आपको रेस्ट और डाइजेस्ट दोनों के सिस्टम में प्रॉब्लम देगा, राइट. सो योगा प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं हम ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि बाबा एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, इधर हाथ रखो छाती पे, ऑल इज वेल, एंड इट्स टाइम टू गो बैक टू योर होम्योस्टेसिस, दैट इज अ बैलेंस स्टेट. यहाँ नीचे लास्ट स्टेटमेंट है होम्योस्टेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा डज दिस टू यू. सेकेंड थिंग, इट रिलीजेज हैप्पी हॉर्मोन्स. मैं आगे इस स्लाइड में हैप्पी हॉर्मोन्स कौन से बताने वाली हूँ, बट अभी मैं जनरली बता देती हूँ. डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, दीज आर हैप्पी हॉर्मोन्स. जब आपने वो म्यूजिक सुना, अंदर आपके एकदम ऐसे खिलखिलाहट उठी, आपको लगा आप नाचने लगो, सो ये हैप्पी हॉर्मोन ने आपको एनर्जी दिया वो करने के लिए. सो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो प्रिवेंट्स डीजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स एंड इंक्रीज इन, ये सारे रिसर्च बेस्ड है, ये मैंने नहीं बनाए, रिसर्च बेस्ड है. सो एन इंक्रीज इन ब्रेन वॉल्यूम इन एरियाज रिलेटेड टू मेमोरी, दैट इज द हिपोकैम्पस एरिया ऑफ द ब्रेन, स्पेशली विद द एल्डरली. न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स में वो देखा गया कि ओम चैंटिंग करने से ही ये सारे एरियाज में एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया. एक्टिवेशन किस चीज़ में, जो न्यूरॉन्स है आपके ब्रेन में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने स्टार्ट हो गए. सो इमोशनल कंट्रोल बेटर हो गया. इट हैज़ द पोटेंशियल टू calm down, it has a potential to bring in a balance in the emotion. So yoga works towards restoration of normalcy in all the systems of body with special emphasis on psycho, neuro, immuno, endocrine axis. So योगा का बहुत बड़ा काम ये है आपके HPA axis को बैलेंस करना. So physical reconditioning of the HPA axis. Most yoga teachers will know this. सेकेंड सबसे बड़ा काम योग का है आपका SEM एक्सिस को बैलेंस करना. SEM के बारे में तो हमने अभी तक बात ही नहीं की. सो SEM एक्सिस इज योर स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड माइंड एक्सिस. ये 3 लेवल पे योगा भी काम करता है. सो पहले HPA एक्सिस पे, दूसरा SEM एक्सिस पे. अब हम आगे देखते हैं योगा और हेल्थ एप्लीकेशंस क्या है. सो भगवद गीता में योग को समत्वम योग उच्यते बोला गया. दैट मीन्स इक्वानिमिटी, होम्योस्टेसिस, बैलेंस एट ऑल द लेवल्स ऑफ द बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, जो भी है. सो अ बैलेंस्ड एंड हारमोनियस स्टेट. योग का मतलब ही हारमोनी है. सो योगा इंटीग्रेट्स. नाउ इफ यू गो फर्दर, हम अभी रेमेडियल मेजर्स देखेंगे कि योगा क्या रेमेडियल मेजर्स देता है इन टर्म्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. आई ट्राइड माई बेस्ट टू पुट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट काफ़ी चीज़ें बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज आई हैव नॉट बीन एबल टू पुट. So science of yoga has numerous practical techniques which which gives advice for proper lifestyle disorders and it helps in maintaining health. जो बाहर के प्रैक्टिसेस हैं, जो हम सबको पता है, महर्षि पतंजलि ने जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम बताया, ये बहिरंग प्रैक्टिसेस हैं. और जो अंदर के प्रैक्टिसेस हैं, जो अंतरंग प्रैक्टिसेस हैं. So along with this, all of these practices together give a restorative and preventive capability. Yoga also aims at promoting positive mental health. So let's see this. महर्षि पतंजलि के योग सूत्र 2.10 में से ये लिया गया है, हे हेतु हान उपाय. दैट मीन्स ये अभी एक प्लान हम बना रहे हैं एज ए योगा थेरेपिस्ट. दिस इज फ्रॉम द योगा पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ एज अ थेरेपिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, so how as a therapist I will make a plan for the patient who will come to me. Same thing, how I can make a plan using the yoga techniques.
सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स है। जब कोई आपके पास आता है एज अ पेशेंट या आपका स्टूडेंट, तो हम क्या देखेंगे, क्या सिम्टम्स लेके आ रहा है। आप ये तो देखेंगे डेफिनेटली कि कोई हेल्थ कंडीशन है नहीं है, या फिर किस चीज़ के लिए वो योगा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। सो सिम्टम्स क्या है, जो पेन हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। हेतु मतलब द कॉजेज, किस वजह से ये हो रहा है। अगर ये इस वजह से हो रहा है, कैन दिस बी रिमूव्ड, कैन दिस बी अबैंडन्ड। सो हम कॉजेज भी ढूंढते हैं। हान, हान मतलब मीन्स, हम कैसे वो चीज़ तक पहुंचेंगे, हम कैसे वो प्लान बनाएंगे, वो प्लान शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। सो दैट इज हान। एंड उपाय इज हाउ वी कैन take the plan forward. That is the means actually, how we can take the plan forward. Hana is the plan and upaya is how we can take the plan forward. Now a good yoga program should always have these three things. PMC, PMC मतलब prevention, management and cure. ये 3 लेवल पे योगा प्लान आपका यूजफुल होना चाहिए। अभी क्योर जो है, इसको आप ध्यान में रखिए, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। सो हे मतलब सिम्टम्स परसीव। अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ क्या सिम्टम्स है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। So mood shift, disturbing social disturbing emotional conflicts, it is an important part of mental health issues. तो कोई अगर आपसे आके ये वाली चीज़ें बताए, तो हमको पता है कि कहीं ना कहीं पे ये वाला एरिया में हमको वर्क करना है। So studies reveal behavioral and mood related symptoms, irrelevant talking, inappropriate behavior, कभी कभी खुद से बात करना, crying spells, बस बेमतलब का रोना, जो बैलेंस नहीं है। रोना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बेमतलब ऐसे ही बस रोना, आते जाना, या लो मूड्स, एंगर, लैक ऑफ अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज़ द मेंटल इलनेस। कहीं ना कहीं पे आप डायग्राम में देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसे कुछ सोच रहे हैं, और सोचने के बाद उनको अपने आप कुछ फील होता है और वो बिहेवियर में आता है। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूँगी, क्योंकि एज अ योगा वी आर स्टूडेंट्स, वी आर ऑल साइंटिस्ट, इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट इट्स एन एक्सपीरियंशियल साइंस। तो हमको साइंटिस्ट बनने का है। तो वीडियो ऑन करो, अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। खुद के साथ ही हमको साइंटिस्ट बनना है। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ये एक्सपेरिमेंट मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। तो अपने हाथ ज़रा हवा में रखिए, थैंक यू, और आंखें बंद रखिए, और मेरे पे थोड़ा भरोसा कीजिए, मैं कुछ नहीं करने वाली, यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकती मैं। अच्छी सी मुस्कुराहट चेहरे पे, हाथों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं देना, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अपने लिए अच्छा है। सो नाउ ब्रीद इन विद अ स्माइल, ब्रीद इन एंड एक्सेल आउट, ब्रीद इन, और छोड़ दीजिए। ब्रेन की एक्टिविटी एकदम काम करेंगे, कामनेस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पार्टिसिपेट करना है तो ही साइंटिस्ट बन सकते हैं ना, साइंटिस्ट तो खुद ही करना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है। सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद आवर बॉडी एंड माइंड नाउ। डू नॉट सपोर्ट योर हैंड्स विद द एल्बो, इट शुड बी आउट इन द एयर। नाउ as your hands are facing the ceiling, just imagine, let's see if you have the imaginary power. Okay, just imagine that I am keeping a weight of 5 kgs on your left hand. आपके लेफ्ट हैंड पे मैं 5 kg का वजन रख रही हूँ। अरे बाप रे, कितना भारी है, एकदम इमेजिन करना है, ठीक है। अब मैंने और एक 10 kg की बहुत बड़ी किताब आपके लेफ्ट हैंड पे रख दी, 15 kg आपके लेफ्ट हैंड पे है। अब भार महसूस होने लगा है। अब मैंने और एक बहुत बड़ी एनसाइक्लोपीडिया आपके लेफ्ट हैंड पे रख दी है। अब लेफ्ट हैंड पे 25 kg वजन है, 25 kgs। अब लेफ्ट हैंड कहीं ना कहीं कुछ अलग से महसूस कर रहा होगा। और एक भारी मेटल का थाल है, बहुत बड़ी थाली है, प्लेट है मेटल की, बहुत पुरानी, कॉपर की, एकदम पुरानी। अब वो भी मैंने लेफ्ट हैंड पे रख दी है, और लेफ्ट हैंड के ऊपर अब 35 kgs का वेट है। योर लेफ्ट हैंड इज फीलिंग हैवी, 35 kgs on your left hand. Now wherever you are, you will open your eyes and look at your hands and immediately share what you are feeling. Yes, Swati ji. Heavier hand was going down and Hand is then going down. लेफ्ट Yeah. हैंड केम डाउन। Left hand Left hand started. going down, ma'am. मुझे लगा मैम लेफ्ट हैंड टूट जाएगा। अरे बाप रे। नहीं नहीं सर, ठीक है। सो मेरा तो लेफ्ट हैंड चले ही जाने वाला था, इतना वजन तो कैसे उठा ही पाएंगे 25 kg।
बराबर है. सो दिस इज 35 था वो, बट 25 मतलब 35 हो गया ना, और करेक्ट करेक्ट. सो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड में आपका वजन भारी लग रहा था. राइट. पूरा और आपको ये definitely पता था, आपको ये क्लियरली पता था कि मैं वहाँ पे नहीं आई, मैंने कोई एनसाइक्लोपीडिया रखी नहीं. अगर पॉसिबल भी होता तो एक आदमी के घर जाती, हर आदमी के घर तो जा ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो थॉट्स क्रिएट होने से अपने आप को फीलिंग में आने लगा. सो आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट मच बेटर टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट. सो मेंटल इलनेस ऐसा ही है. माइंड में अगर आपके उस टाइप के थॉट्स हैं, थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, कोई ना कोई इम्बैलेंस से, केमिकल इम्बैलेंस से वो अपने आप फीलिंग्स में आएंगे और वो अपने बिहेवियर में भी आएंगे. जो बिहेवियर हमने पहले डिस्कस किया, नॉट बीइंग एबल टू बी फंक्शनल कंप्लीटली, और फीलिंग लो, फीलिंग सैड, फीलिंग इम्बैलेंस्ड, और थिंकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स. सो मेडिकल जब इलनेस होता है उसमें कोई ना कोई केमिकल इम्बैलेंस से ये वाली चीज़ें होती है. या फिर अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वहाँ से भी हम कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, डिस्कम्फर्ट में, डिसऑर्डर्स में एंटर कर सकते हैं. सो ये थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है. ओके. मैं आई विश मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ इस क्लास में, बट मैं जितना बता सकती हूँ मैं उतना ट्राई कर रही हूँ. अभी देखिए, जो मैंने आपको क्योर की बात की थी, क्योर आप कब तक कर सकते हैं, जब तक वो साइकोसोमैटिक फेज़ में. जैसे ही वो ऑर्गेनिक फेज़ या सोमैटिक फेज़ के एंड में आ जाएगी कोई भी इशू, कोई भी डिसऑर्डर, तो उसको हम क्योर तो नहीं कर पा सकते, लेकिन हम उसका जो उसको पैलेटिव केयर के तौर पे हम योगा को वहाँ पे बेनिफिट्स ले सकते हैं. तो जैसे अगर कैंसर की बात है तो अभी हम योगा से उसको क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन वी विल बी इन अ बेटर प्लेस टू improve the mental health condition. And when the mental health condition improves, automatically the body comes to an homeostasis. वो होने से automatically जो आपका illness का level है वो कम होगा. same thing with many mental health disorders in terms of depression. so बहुत सारे टाइम पे mental health disorders सबसे बेस्ट जब वो psychic phase में है, जब ये first वाला आप देखेंगे. so it is marked by mild and persistent psychological and behavioral symptoms. so irritability, disturbed sleep, minor symptoms. तो ये phase में maximum लोग हमारे पास आते हैं as a yoga professional और even as a mental health professional. maximum लोग ये phase में आते हैं या फिर psychosomatic phase में आते हैं, जहाँ पे वो symptoms दिखने लग गए, जहाँ पे उनकी life को effect होने लग गया, जहाँ पे वो symptoms कहीं ना कहीं body में एक हेडेक क्रिएट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बहुत लोगों को ट्रेमर्स फील होते हैं बॉडी में. तो यहाँ पर भी हम बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं. सो योगा कैन एक्चुअली हेल्प इन ऑल द फेजेस. सो द प्लान हैज़ टू बी प्रिवेंटिव एंड रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टू क्योर. ओके. सो अभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैसे डायग्नोस होते हैं, इवन एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे कैसे पता चलता है कि इसको मैं डिप्रेशन बोलूँ या इसको मैं स्किज़ोफ्रेनिया बोलूँ, क्योंकि एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है जिसको हम DSM-5 बोलते हैं. पहले DSM-4 था, 3 था, अब DSM-5 चल रहा है. सो इट इज़ अ मेंटल हेल्थ गाइड बुक फॉर डॉक्टर्स. सो जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पब्लिश किया है, उसमें कुछ सिम्टम्स लिखे हैं और वो सिम्टम्स का टाइम फ्रेम लिखा है कि इतने टाइम फ्रेम से इतने टाइम फ्रेम तक अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर 5 में से 3 या 4 सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मतलब कुछ इशू है. और जब भी एज अ योगा प्रोफेशनल यू रियलाइज कि कुछ इशू है, यू हैव टू रिकमेंड दोज पीपल टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. वी हैव टू वर्क विद हैंड्स एंड ग्लव. हमें साथ में काम करना है, क्योंकि ये दूर दूर का अप्रोच बहुत हो गया. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट. इट्स टाइम फॉर इंटीग्रेशन. स्पेशली ये पैंडमिक की बात जब आपने देखा होगा कितने लोग कितनी सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं. सो हमें बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे ये ध्यान में रखना और इसके बारे में एजुकेटेड रहना. सो योगा इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ अप्रोचेस. इट इज़ कंसिडर्ड एंड वी हैव टू ऑल्सो इम्प्रूव एंड कीप इम्प्रूविंग आवर knowledge on that. Right? Yoga brings together physical and mental discipline that may help you achieve peacefulness and body and mind, and thus relax and manage depression or any other mental health disorders. Okay. सो योगिक व्यू हमने ऑलरेडी देखा कि योग क्या बोलता है, भगवत गीता में क्या लिखा है, प्लस महर्षि पतंजलि ने हमको बताया है कि कहाँ से आते हैं क्लेश, जो महाक्लेश. अविद्या की मैंने बात की, अविद्या, अस्मिता, द्वेष. तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कनेक्टेड है, जो मनोमय कोश में आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, थॉट लेवल पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो प्राण लेवल पे आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मतलब ब्रेथ में, और कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में, और फिर वो फिजिकल लेवल पे आता है. सो हेतु मतलब कॉजेज़. अभी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. देखिए, जैसे हमने वो पेपर वाली एक्टिविटी की
तो हम सब अलग हैं, हमारा जेनेटिक मेकअप भी अलग है, तो वैसे कहीं ना कहीं वो कॉजेज़ भी अलग होंगे। तो जब कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं एंड यू ऑल आर योगा टीचर, सो यू हैव टू टेक अ वेरी डिटेल्ड इंटरव्यू एंड चेक कि कहाँ से आ रहे हैं ये कॉजेज। सो इज इट बिकॉज द पर्सन हैज़ ओवर अब्यूज ड्रग्स, कभी वो भी हो सकता है। इज इट बिकॉज द पर्सन इज एन ओवर थिंकर, इज इट बिकॉज कि उनकी फैमिली में जेनेटिक रिलेटेड कोई इशूज़ है, इज इट बिकॉज कि अभी अभी बर्थ दिया है, या कोई और अदर स्ट्रेसफुल कॉजेज़ है। सो इन सब चीज़ों से बायोकेमिकल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल से भी हो सकता है, या खुद के अंदर ही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उससे भी हो सकता है, या फिर इंड्यूस्ड ड्रग्स यूसेज से भी हो सकता है। सो दीज आर द कॉजेज वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर। बहुत बार लोगों को लो सेल्फ एस्टीम होता है, जिससे वो स्ट्रेस के लिए ज़्यादा वो दे हैव अ मोर व्हाट डू यू कॉल, व्हाट इज दैट वर्ड, okay, I forgot the word, but they are more prone to stress, right? So उनका एक thinking है, एक attitude है which is more prone to stress, so we have to check and we have to work on those areas. Okay, now aim of the program, योगा प्रोग्राम का एम क्या होना चाहिए कि ये बात तो है कि कोई मैजिक बुलेट नहीं है, कोई भी चीज़, इवन व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वी नो एज काउंसलर्स की साइकोलॉजी इज़ नॉट अ मैजिक पिल कि एक पिल दिया और काम हो गया। काउंसलिंग वैसे काम नहीं करता है, हमें पहले तो बहुत समझना पड़ता है कि क्या है और इसको कैसे मैनेज करना है, ये हमारा एम होता है, और ताकि फ्यूचर अटैक्स भी नहीं हो, इससे भी कैसे हमको प्रिवेंशन करना है। सो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये भी हमको देखना है। एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट वॉयलेंट है या स्टूडेंट जो भी आपके पास आ रहे हैं वो वॉयलेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि योगा प्रोग्राम नीड्स टू बी डेटर्ड टिल द टाइम दे कैन बी इन अ स्टेट ऑफ रिसीविंग। देन core objective of the program is to overall increase the physical activity, reduce the prefrontal cortex activity जो हमने देखा अभी, HPA axis, and bring a balance in the chemicals and the body mind senses. Primary function is that a person should be able to respond appropriately and become more and more stronger. So basic level यही है कि वो माइंड पे काम करता है, मनोमय कोश पे, फिर वो आपके अंदर कहीं ना कहीं प्राणमय कोश में काम करता है, और फिर वो अन्नमय कोश में कुछ रिजल्ट लेकर आता है। सो जब उपाय की बात करते हैं, उपाय मीन्स द मीन्स टू अचीव दैट प्लान दैट वी आर मेकिंग। सो क्या उपाय है? सो बेसिकली एक अच्छा आइडिया है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कि आप कोई बड़ी को क्लब करें, किसी घर के मेंबर को या कोई ऐसे इंसान को जो एक उसका एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज एनीवेज पीपल फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर नॉट वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी लो है। अब वो एनर्जी कहाँ से लो है वो हम आगे एक मिनट वो हैप्पी हार्मोन्स जो मैंने आपको बताए थे उसी बारे में हम वापस देखेंगे। सो बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम भी जनरली अटैच हो जाते हैं। सो एज अ ट्रेनर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी आर नॉट गेटिंग इमोशनली अटैच, नॉर इज द बडी गेटिंग अननेसेसरीली अटैच। नहीं तो एक को ठीक करने तो दोनों चले जाएंगे, तो वैसे नहीं करना है। वी हैव टू बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी मीन्स like being in the shoes of the other person. It is not being in the shoes of the other person. It is like as if you are in the shoes. आप उनकी तरफ से समझ रहे हैं बट आप वो नहीं बन रहे हैं। ओके, सो नॉर्मल जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो महर्षि पतंजलि ने यम और नियम के बारे में बताया, ये यम और नियम क्या है? रिलेशनशिप अपने साथ और रिलेशनशिप वर्ल्ड के साथ, जो जनरली इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स डिस्टर्ब्ड होता है। सो वर्किंग ऑन यमाज एंड नियमाज आर वेरी केयरफुल। बट मेरे अंडरस्टैंडिंग में यमाज और नियमाज बहुत मुश्किल हैं। हम सोचते हैं कि ये सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे पहले स्टेप्स में आती है, बट एक्चुअली यम और नियम बहुत ही मुश्किल है। आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए एज पर द पेशेंट इज एबल टू टेक इट। ओके, सो यमाज क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। दिस इज समथिंग यू ऑल नो, सो आई वोंट गेट इनटू एक्सप्लेनिंग, बट दिस विल लीड टू इमोशनल कल्चरिंग, जो हम SEM एक्सेस की बात कर रहे थे, इमोशनल कल्चरिंग। देन नियमाज है शौच, प्योरिटी मतलब क्लीनलीनेस, नॉट जस्ट क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी और द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो ऑफ द इनसाइड माइंड ऑफ थॉट्स। संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सो दीज आर द यमाज एंड नियमाज दैट आर गिवन। नाउ भाव, ये एक चीज़ हम बहुत ही इग्नोर करते हैं योग में। ये मैंने ऑलमोस्ट 12 साल पहले योगा इंस्टीट्यूट में जो मेरे गुरु हैं हंसामा, उनसे ये चीज़ सीखी अबाउट एटीट्यूड, कि योग में जब आप कोई आसन कर रहे हैं उसको मैकेनिकली नहीं करना, आप भाव को कैसे जोड़ सकते। दैट मीन्स एटीट्यूडनल योगा अलॉन्ग विद द रेगुलर योगा दैट यू आर डूइंग, तो ही वो शिफ्ट होगा, तो ही वो SEM एक्सिस पे काम करेगा जो हमने बात की। सो योगा प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद भावास, 4 टाइप के भाव हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य एंड ऐश्वर्य। अब वो क्या है हम वो आगे देखेंगे।
बट ये भावा कहीं ना कहीं करेक्शन लाते हैं एट द लेवल ऑफ द सटल एनर्जीज, दैट मीन्स आपके अंदर का जो थिंकिंग है जो हमको दिखता नहीं है वहाँ पर भी, और ऑटोमेटिकली जब आपकी थिंकिंग और दूसरे वाली चीज़ें चेंज होती है वो आपके जो बाहर है, जो ग्रॉस है, जो दिखता है, उसमें भी वो आने लगता है ना। एज ए योगा टीचर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट दीज एटीट्यूड्स। कब आएंगे? जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज़, जब हम उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं धीरे धीरे ये भाव उनके अंदर क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करेंगे ये हम क्रिएटिवली खुद सोच सकते हैं, राइट। सो ये भाव हमको कहीं ना कहीं फ्रॉम द योगा प्रैक्टिस टू एवरीडे लाइफ लेकर जाने हैं, स्पेशली बिकॉज दीज आर पीपल विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और कंसर्न्स। वी हैव टू वर्क ऑन द भावा एस्पेक्ट, बिकॉज हम मेंटल हेल्थ कंसर्न क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं एटीट्यूड रॉन्ग होने की वजह से, मनोमय कोश में इशू होने की वजह से। तो वहाँ पे हमको ये भाव फिट करने बहुत ज़रूरी है। सो क्या है सबसे पहला भाव? धर्म भाव। धर्म भाव कौन से वाले आसन से क्रिएट हो सकता है ये हमको समझना, जो मैंने आगे रखा हुआ भी है। धर्म क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है कि अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करना। आप जब आसन करा रहे वो कराते कराते आप ये वाले सजेशंस दे दीजिए, ये वाले एफर्मेशंस दे दीजिए, तो अपने आप वो चीज़ अंदर इनकलकेट हो जाता है। हमको बैठ के सेपरेटली काउंसलिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है। सो लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, कैसे बैलेंस मेंटेन करना है। सो आसन कौन से हो सकता है? वृक्षासन हो सकता है, ताड़ासन हो सकता है। दीज आर द आसन्स विच विल क्रिएट अ धर्म भाव, दैट मीन्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी फर्स्ट टूवर्ड्स सेल्फ। देन ज्ञान भाव। ज्ञान भाव इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर सही ज्ञान हमारे अंदर है तो ऑटोमेटिकली वो सफरिंग और पेन का कारण ही नहीं बनेगा। तो ज्ञान भाव, जो ज्ञान रिलेटेड आसन्स है, कॉन्सेंट्रेशन है, ज्ञान मुद्रा है, सुखासन है, लोटस पॉस्चर है, सो पद्मासन। सो वी कैन यूज ऑल ऑफ दीज आसनास टू इनकलकेट द ज्ञान भाव। ज्ञान भाव मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। देन वैराग्य भाव। वैराग्य भाव, लोग ऐसे सोचते हैं वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, दुनिया छोड़ के भागना। नहीं, वैराग्य डज नॉट मीन दैट, बट वैराग्य मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक ऑब्जेक्टिविटी रख सकते हैं कि मैं अलग हूँ और बाहर की सिचुएशन जो हो रही है वो अलग है। लाइक अ मूवी, लाइक अ विटनेस, यू आर एबल टू सी। सो बहुत सारे आसन है जो वैराग्य भाव भी लाते हैं, और वो करते करते आप बता सकते हैं। तो जो भी आगे झुकने वाले आसन है, जो योग मुद्रा है या फिर हस्तपाद आसन है, सो ये वैराग्य भाव क्रिएट करने में आपको हेल्प करेंगे। सो ह्यूमिलिटी। सो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि जो भी पेड़ में ज़्यादा फल लगे वो पेड़ हमेशा थोड़ा झुका हुआ होता है, दैट मीन्स एक ह्यूमिलिटी होती है। सो आसन डन विद दिस भावा शुड रिफ्लेक्ट इन डेली लाइफ ऑल्सो, नहीं तो फिर वो मैकेनिकली हो गया लाइक मशीन, एंड वी आर नॉट लाइक मशीन। ऐश्वर्य भाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई योग सूत्र में भी ये लिखा गया है कि जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना हम परफेक्ट होते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ अपने से ज़्यादा बियॉन्ड अचीव कर लेंगे तो आपको एक ऐश्वर्य भाव फील होता है, अंदर एक विल पावर जागता है, कॉन्फिडेंस जागता है, एनर्जी जागता है। और ऐश्वर्य भाव इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग द धर्म, ज्ञान एंड वैराग्य भाव। तो ऐश्वर्य आना ही आना है, आपके अंदर एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड। नाउ लेट अस सी फर्दर। जो हमने हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में बात किया, देखिए ये सब बहुत ही सिमिलर है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो भाव भी बहुत हद तक मोटिवेटिंग है टू दिस। सो डोपामीन एनेबल्स मोटिवेशन, इट एनेबल्स एनकरेजमेंट, यू वांट टू अकम्प्लिश सम गोल। सो जब हम उस तरीके से योग में काम करते हैं तो अपने आप ये वाले केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आप आंखें बंद कीजिए और सोचिए एक चीज़ के बारे में जो आपने अपनी लाइफ में अकम्प्लिश किया है। देखिए आपके अंदर क्या होने लगता है, या आपका सबसे हैप्पी मोमेंट, कोई भी हैप्पी मोमेंट, एकदम सबसे बेस्ट हैप्पी मोमेंट, उसको अपने आंख के सामने लाइए। आप किसके साथ थे, कैसा महसूस किया, क्या फील करवाया उन्होंने आपको, या आप अकेले थे, या आपको अवार्ड मिला, या जो भी हुआ। सो देखिए आपके चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आने लगी। सो ये हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है, राइट। सो सिंपली पुट, आई हैव जस्ट ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट योगा सेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब भी अभाव है, अगर इन चीज़ों का अभाव है, कहीं ना कहीं कमी है, तो उससे ये सारे इश्यूज आएंगे। अभी हर हार्मोन को रिलेटेड भी मैंने डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या इश्यूज आएंगे ये बताया है। तो जब योग आसन आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि कौन से योग आसन से क्या क्या बेनिफिट होता है। सो गोइंग फर्दर, मैं इसको ज़्यादा नहीं ये करूँगी बिकॉज टाइम की बहुत कमी है, बट वी नो दैट द 4 पिलर्स ऑफ योगा, और ये सारे पिलर्स अगर हम फॉलो करते हैं अपने आप अंदर से वो आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो नॉर्मल चीज़ें हैं। सो राइट आचार मीन्स राइट बिहेवियर, राइट डिसिप्लिन,
ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जब यूट्यूब पे देखेंगे तो यू कैन ऑल्सो रीड इट. राइट थिंकिंग, छोटी छोटी चीज़ें, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना या दिन में 3 बार स्माइल करना. जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन डिसिप्लिन, स्माइलिंग एटलीस्ट 3 times a day in front of the mirror. ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती, अपने आप आपका मेंटल केमिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाएगा. देन like Maharishi Patanjali has mentioned about Chitta Prasadan, Pratipaksha Bhavana. This is what as students we all have learned, and this is something we can inculcate even in the people who need help. आहार, सही आहार खाना बहुत ज़रूरी है. प्लस मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कभी भी कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रिलेटेड इश्यूज़ आपके सामने आते हैं या पेशेंट्स आपके सामने आते हैं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. 3 चीज़ें, विटामिन B12, विटामिन D3 और थायराइड, क्योंकि इस वजह से भी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस होते हैं, मूड्स में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस होते हैं. ये चीज़ें हम जनरली भूल जाते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता. विहार मीन्स रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हॉबीज़ दैट यू फॉलो, ये हम सबको पता है, सो आई विल नॉट गेट इन टू डिटेल्स. सो योगा डज नॉट ओनली इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट ऑल्सो गिव्स यू इमेंस बेनिफिट. ये सब आप पढ़ सकते हो. अभी बहुत सारे आसन्स हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, क्रिया है, वो मैंने सब यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं. और हर आसन प्राणायाम क्रिया से क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखिए मेंटल लेवल पे कितना सारा बेनिफिट है. कोई भी पेशेंट जो मेडिसिन खा रहे हैं या कुछ ना कुछ उनका लाइफ, तो कहीं ना कहीं लाइफ एनर्जीज लो है. जब आप जलनेति करते हैं या कोई भी धौती क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कि उनके चेहरे की यूथफुल अपीयरेंस आने लगी है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगा है. ऑटोमेटिकली उससे उनके जो ऐश्वर्य भाव है वो क्रिएट होता है, तो अंदर अंदर और एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर चेंजेस होते हैं केमिकल लेवल पे. सो हर एक आसन प्राणायाम के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है क्रिया के कि मैं बताने के लिए टाइम कम है. सो उत्तान आसन, भुजंग आसन, देखिए यहाँ पे भी अगर आप झुकते हैं तो एंग्जाइटी ये कंट्रोल करता है. दिस इज ऑल वेल रिसर्च, सो इट इज़ नॉट समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग थ्रू ईच वन, बट आई हैव पुट इट इन द स्लाइड हियर. मत्स्येंद्र आसन, एनी स्पाइनल ट्विस्टिंग आसन विल गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स, स्लीप विल बिकम बेटर, मेंटल डायलेमास कम हो जाएंगे. मत्स्य आसन, तो मत्स्य आसन तो इतना अमेजिंग है, वो आपके 3 ग्लैंड्स पे काम करता है, पाइनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड. इट इज सो अमेजिंग. ताड़ासन, सो ताड़ासन विल वर्क इन सो मेनी अदर वेज. बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाले हैं. राइट, सो यू कैन सी देर आर नंबर ऑफ आसन्स. प्राणायाम, सो प्राणायाम तो जैसे हमने नर्वस सिस्टम की बात की, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सो अनुलोम विलोम नंबर 1 प्राणायाम to balance the nervous system and the sympathetic and the parasympathetic nervous system. Bhastrika pranayam, it creates an energy, especially with people who are with depression. This is very very excellent for them. अपने आप, so medicine लेना एक अपनी जगह में है, वो बैलेंस कर रहा है, लेकिन नेचुरली वो बूस्ट करना जो योगा करता है वो कितना कॉम्प्लीमेंट्री और हमारे लिए कितना यूजफुल है. उज्जयी प्राणायाम, ट्रैंकुलाइजिंग, जिनको नींद नहीं आती, 1 नंबर प्राणायाम है ये, जिसमें आपको अपने आप एक ट्रैंक्यूलाइजर की तरह इंड्यूस होने लगेगा. तो बाहर के मेडिसिन और अंदर का जब एक बॉडी का रिस्टोरेशन होना, सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ गिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी. सूर्य भेदन प्राणायाम, सो समथिंग विच विल मेक यू एक्टिव. भ्रामरी, सो डिफरेंट पेशेंट्स के हिसाब से आप अलग अलग हिसाब से चुन सकते हैं. देयर इज़ अ होल पैलेट आउट देयर, यू डिसाइड व्हाट द पर्सन नीड्स. ओके, योग मुद्रा भी डिस्कस, विपरीत करनी मुद्रा, एक्सीलेंट 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 फॉर सो मेनी थिंग्स. प्लस बंदाज है, मेडिटेशन है, मंत्रास है, ये हम सबको पता. अगर किसी पे कुछ नहीं काम करता तो आप मंत्रा लगा दीजिए, योग निद्रा करा दीजिए. सो इतना डिफरेंस आता है. अभी जो भी हम कर रहे हैं ये सब हम स्टेजेस में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब एक साथ करना है. सो स्लो 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 स्टार्ट करके हम लोग 1 2 3 स्टेज में जा सकते हैं. Plus, there are so many other ways of yogic counseling. We know at the Vigyanamayya course, counseling works very, very well. So, आप किन चीज़ों से right? So, apart from that, these are the lifestyle changes that yoga helps in. Plus, there are so many other psychological techniques that you can use. I put the name over here. You can again see it on YouTube. सेवा, सर्विस, वेरी वेरी ह्यूज थिंग. एंगेजमेंट पॉजिटिवली, ये साइकोलॉजी में भी हम बार बार बोलते हैं, पॉजिटिव एंगेजमेंट, रिक्रिएशन. इवन इन योगा वी टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी ऑफन. सो पीपल फील यूजफुल, दे गेट अ मीनिंग इन लाइफ, दैट पर्पस इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा प्रोग्राम अच्छा हुआ कि नहीं? यू कैन असेस देम ऑन देयर फिजिकल स्टेट, कैसे थे, मेंटल स्टेट पे कैसे कुछ इंप्रूवमेंट आया नहीं आया, फिर इमोशनल स्टेट पे अपने बारे में क्या सोचने लगे हैं, कुछ सेल्फ एस्टीम बेटर हुआ, या फिर स्पिरिचुअल स्टेट पे कैसे है. तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कि प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
Now finally it's a word of caution. See, yoga practice initially will make you feel very very good. So tendency होता है कि clients अपने आप medication stop कर दे. तो very careful कि without mental health professional advice medication should not be stopped, because you are inducing some drug from outside. उसको धीरे धीरे wean out करना पड़ता है. Now yoga is a science that works on the SEM and HPO axis, which we discussed earlier. Only a perfect balance of HPO and SEM axis can relate to होम्योस्टेसिस और हार्मनी. SEM एक्सिस और भी पावरफुल है. जब अंदर से आपका एटीट्यूडनल शिफ्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डील बेटर. सो मनोमय कोश से नीचे नीचे आने तक इलनेस नहीं, वहीं पे डील हो सकता है. हाउ वी विल रिस्पॉन्ड, आवर स्टाइल्स विल बिकम सो मच बेटर. So collectively, yes, SEM HPO axis works very well on integration. It will bring the yoga that we are looking at. योगा मेंटल साइंस में यूज़ करने के काफ़ी लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस ये है कि बहुत सारे टाइप के योग है, कौन सा यूज़ किया जाए. सब अपने अपने टाइप का बताते हैं. दूसरी चीज़ है कि कई बार जो स्टॉन्च योगा प्रैक्टिशनर्स है वो अपने टाइप को छोड़ना ही नहीं चाहते, और फिर वो उसको एक ही they just want yoga to be from a spiritual aspect. See, yoga is of course from the spiritual aspect, but understanding what is the need in the right now, we will have to define the goal and move further. So अगर हम और इसमें जाएंगे, आगे रिसर्च करेंगे, so एक कॉपरेशन होने से दोनों फील्ड से ये चीज़ आगे जा सकती है. अभी की तारीख में वो खुलना शुरू हुआ है. It is a good beginning and we hope that this kind of takes it forward, because Maharishi Patanjali, when he wrote the Yoga Sutras, it was for a mind science only. He was a psychologist of the mind, he was a scientist of the mind. So he has written that. और कई बार तो ऐसे स्टोरीज में बोला जाता है कि आयुर्वेद की जब किताब बन गई उसके बाद लोगों को कई साइकोसोमेटिक इश्यूज़ के बारे में हल नहीं मिल रहा था. तो जब उन्होंने प्रे किया तो फिर ये महर्षि पतंजलि के रूप में जब ही केम एंड ही गेव दिस. तो जब उनकी प्रेयर में भी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यू आर द वन हु प्योरिफाइड द माइंड. सो इट इज़ एक्चुअली अ मेंटल हेल्थ रिलेटेड science which takes you from mind to soul. So it is something so amazing that we have. NIMHANS has worked so much on this, and there are various efforts that are being done even by S. Vyasa Morarji Desai Institute. So I would just like to mention कि बहुत सारा efforts हो रहा है. मैंने references उनसे लिया है. मैंने references New Age Yoga Institute की book से लिया है, from Disease to Yogis, and a lot of references is from the internet. So with that, just to understand, this is just a beginning and we have to go forward.